You are currently the only person in this conference. I'm on. Wait for others. Hi, good morning. Okay, let's start. Let me share my screen. So in yesterday's session we created our first step और हमने अपना object setup कर रहे थे, right? And in that we have seen this object that we created, this applicant which is there with us, right? Currently if you see हमने जो जो field setup किए हैं like name, first name, last name, experience, gender. Now let's set up the other fields that we have to set up. Okay. तो हमने ये सब नोट किए थे. Let's create this field. Age, expected salary, ये सारी fields भी we need to set up. Okay. Yes, Satyajit, you have raised your hand. Tell me. Actually, I have one question. So, यहाँ पे जो डेटा हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इट्स टेबल, राइट? हाँ हाँ. तो इसको एक्सेस करने के लिए आउटसाइड जो भी हम फील्ड डालेंगे एपीआई के थ्रू, आई मीन वो बता सकते हैं, मतलब हाउ आई कैन Basically, how Salesforce can be accessed outside from Java. हाँ आउटसाइड, हाँ वो उसको कहीं पे भी एपीआई की और वो यूआरएल लिंक एंड पॉइंट चाहिए होता है ना किसी भी एप्लीकेशन में एक्सेस के लिए. Let's say integration. Okay, this is हाँ admin इंटीग्रेशन, training. यस. So integration is not part of admin training. वो डेवलपमेंट में हम लोग कवर करते हैं. आप डेवलपमेंट बैच में हो क्या? हाँ मैं दोनों में हूँ. हाँ, तो डेवलपमेंट में वो हम लोग देखेंगे. I mean, it's a coding. तो यहाँ से एपीआई की एटलीस्ट देखने के लिए कहाँ से जाएंगे? डेवलपर कंसोल में. You need to create your connected app and then you need to do the setting. The way we do it, इस org में मेरा नहीं है, दूसरे org में setup है. You create your own APIs here within the Salesforce. This entire concept of integration, you just change the context of entire training. So the way you access any of the Salesforce API, I think it's not more than that because it's an integration topic. तो जो कि हम लोग डेवलपमेंट में करते हैं, ठीक है. You give your Salesforce, ठीक है. आपका जो भी Salesforce का API आप क्रिएट करोगे, apex rest slash services, ठीक है. And then you need to specify your API. Okay. How this API URL you will be getting? So आप जो भी REST API यहाँ पे क्रिएट करोगे within Salesforce, okay. So that REST API you have to specify. Okay. I can showcase you. And in order to access that, what we do is we create connected apps. Create करते हैं, ठीक है. In the connected app, your consumer key and I think I already have some. Let me see. But this is totally out of context. अभी जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, this is totally out of context. नहीं वो मैं कहीं मुझे कोई डेटा इंटीग्रेट करना था इसलिए मैं पूछ रहा था. If any dummy data that we can access from Salesforce. I will just show you the approach, but we won't build integration right now. No, I am not even. I don't want you to do that. But idea मुझे चाहिए. That's all. Yeah, I will give you the idea. So the way we do is, अरे यार. Hello. Yes, hello. Hello, yes. Morning, sir. Good morning. Little bit late, sir. Fine. No worry.
So you go to this app, ठीक है? In order to access your Salesforce, आप connected app setup करोगे, ठीक है? I think I should have some. This is and so you set up a connected app, यानी external client app में जाके इधर आप जाओगे. सर अभी क्या बता रहे हैं आप अभी ये बोला? I am not telling. The one person has asked question on integration. I'm just explaining. ओके Our topic will start in a minute. So यहाँ पे आपको जैसे ही आप अपना ऐप सेटअप करते हो connected app, you have manage consumer details. Here you will go. ये अभी ऑथेंटिकेशन देगा. जैसे मैं अपना ऑथेंटिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, वहाँ ऑप्शन आता है कंज्यूमर की, कंज्यूमर सीक्रेट का, ठीक है? So that consumer key and consumer secret you can use as your authentication key. Let me verify and copy. You see, here is your consumer key, consumer secret. Okay, got it. But this is just to access. But इसके बाद data expose करने के लिए you need to create your application. I mean, there is a way how we create API in Salesforce जो हम डेवलपमेंट में करते हैं, ठीक है? Just a concept. But this is out of the topic. अभी out of the topic, I mean we can't take. So stick to the topic. Okay, thank you. So let's come back. हम लोग अपने जो टॉपिक में स्टार्ट किए थे उस पर कंटिन्यू करते हैं. क्या कर रहे थे हम लोगों ने अपना पहला ऑब्जेक्ट सेटअप किया यहाँ पे, ठीक है? दिस एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट, एंड फॉर दिस दीज आर द फील्ड्स दैट वी नीडेड टू सेटअप. हमें सेटअप करना था, ठीक है? हमने क्या क्या फील्ड ऑलरेडी सेटअप कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे. फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एक्सपीरियंस है, जेंडर है. दीज आर द फील्ड्स. नेक्स्ट मुझे क्या करना है, आई नीड टू सेटअप द रिमेनिंग फील्ड्स. तो अभी क्रिएट करते हैं. जैसे एज, एक्सपेक्टेड सैलरी, एक्सपीरियंस, ये सारी है ना, क्रिएट करते हैं. अगेन कोई भी फील्ड वगैरह सेटअप करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी नीड टू गो टू द सेटअप. सो लेट्स गो टू द सेटअप. जब सेटअप में क्लिक करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाते हैं एंड यहाँ से हम लोग अपना ऑब्जेक्ट सेटअप करते हैं. एप्लीकेंट एंड फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, एंड लेट्स क्रिएट अ फील्ड. क्लिकिंग ऑन एज. व्हाट विल बी द डेटा टाइप, नंबर होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आके हम लोग नंबर एज ए डेटा टाइप, तो मैंने चूज किया नंबर एज ए डेटा टाइप. नेक्स्ट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एक्सपीरियंस, जेंडर. एज सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ सेलेक्ट करो आप. हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वांटेड टू अलाउ, तो यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हो. मैंने बोला अप टू 2 कैरेक्टर्स, ठीक है? नीचे आते हैं, लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट. Making it visible to all the profiles. It's salary. सैलरी किस टाइप का फील्ड है? सैलरी इज अ करेंसी फील्ड, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग करेंसी जैसा डेटा टाइप सेलेक्ट करते हैं. तो इधर आते हैं एंड हियर वी चूज करेंसी एज अ डेटा टाइप. वी गो डाउन. Expected salary, how many characters? Up to 6 characters. Next. Making it visible to all the profiles. 7. Last, let's get few fields. email, phone, country. ईमेल के लिए आप चाहो तो टेक्स्ट भी सेलेक्ट कर. नो, ईमेल के लिए सेल्सफोर्स में स्पेसिफिकली आपको एक डेटा टाइप प्रोवाइडेड है, ईमेल, ठीक है? अगर आप ईमेल एज ए डेटा टाइप यूज करोगे तो द बेनिफिट दैट यू गेट इज लाइक इट चेक्स फॉर द फॉर्मेटिंग. आई मीन @ होना चाहिए, .com ऐसा कुछ, डॉट करके डोमेन कुछ होना चाहिए. तो दो ये स्टैंडर्ड वैलिडेशन यू गेट बाय डिफॉल्ट. तो ईमेल के लिए यहाँ पे सेलेक्ट किया ईमेल एज ए डेटा टाइप. ईमेल को चूज किया, क्लिक ऑन फील्ड लेबल. मैं इसका नाम देता हूँ ईमेल, ठीक है? गो डाउन.
making it visible to the profile. And save and new. ठीक है, हो गया. फोन एंड द कंट्री. सो लेट्स फोन के लिए भी आपका फोन डेटा टाइप है, फोन के फॉर्मेट में वो स्टोर करेगा इनको को. तो यहाँ से सेलेक्ट किया मैंने फोन एज ए डेटा टाइप. नाउ लेट्स क्लिक ऑन स्पेसिफाई हियर फोन. ठीक है, इधर भी क्लिक किया फोन. गोइंग डाउन, नेक्स्ट, मेकिंग इट विजिबल टू ऑल द प्रोफाइल्स. एंड इधर आते हैं नेक्स्ट, सेव एंड न्यू. एंड जो लास्ट है वी नीड ए कंट्री. सो हियर यू गो. कंट्री के लिए अगेन वी विल यूज एज ए ड्रॉप डाउन. ड्रॉप डाउन फिल सेलेक्ट करते हैं. तो यहाँ नीचे आते हैं और आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में मिल जाएगा ऑप्शन पिक लिस्ट. सेलेक्ट किया पिक लिस्ट एंड वी गो डाउन. नेक्स्ट, चूज हियर. आई एम कॉलिंग इट कंट्री. ठीक है. व्हाट आर द ऑप्शंस वी नीडेड फॉर दिस? अब अच्छा, ग्लोबल पिक लिस्ट का एक कॉन्सेप्ट है, वी विल कवर लेटर. व्हाट आर ग्लोबल पिक लिस्ट? ठीक है. अभी स्पेसिफाई करते हैं फील्ड वैल्यू. नीचे सेलेक्ट किया, जो जो ऑप्शंस आपको चाहिए यू कैन स्पेसिफाई. आई एम गिविंग सपोज इंडिया, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान. रिमेंबर पिक लिस्ट फील्ड था, कल भी मैंने बताया था. पिक लिस्ट के लिए हम लोग बाय डिफॉल्ट जो है रेस्ट्रिक्शन फील्ड ऑन रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड रेस्ट्रिक्शन आपका ऑन है, which will ensure that apart from these value set, you have any question, Rajit? ये सर, ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है यूज ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट, इसमें लेंगे सर तो क्या होगा? I will teach you. ग्लोबल पिक लिस्ट मैंने पढ़ा है, वही मैंने बोला. I will teach you the global Okay. pick list. ठीक है. तो अभी के लिए जो भी बना रहे हैं इसी में, इसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग रख रहे हैं. ठीक है. There is a concept of global pick list. We will see in the coming classes. So these are the value set I am specifying. ठीक है. Field restriction always recommended कि हम लोग restricted जो ऑप्शन है इसको हमेशा इनेबल रखते हैं. ठीक है. नाउ गो डाउन, क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट, मेकिंग इट विजिबल टू ऑल द प्रोफाइल्स. नेक्स्ट, सभी अपना ऑब्जेक्ट जो है वो रेडी हो गया. इफ यू गो हियर, जो भी फील्ड्स आपने ऐड किया बाय डिफॉल्ट इट गेट्स एडेड. ओके, वन बिलो द अदर. लेट्स ट्राई टू क्रिएट फ्यू रिकॉर्ड्स. सो आई एम क्रिएटिंग फ्यू रिकॉर्ड्स. लेट्स से माइक, write some experience. Let's say I'm saying 1 year. Change the mail, age of 48. ईमेल से ये बेनिफिट देखो, अभी मैंने एबीसी टाइप किया, इट विल गिव यू द एरर. दैट्स व्हाई ऑलवेज चूज ईमेल एज ए डेटा टाइप. I am keeping it USA. Save and new, it will allow you to create new records instantly. Going over here, Emma. इसके लिए भी कंट्री लेते हैं. आई एम सेलेक्टिंग USA. Let me, I need 4 or 5 because I wanted to show you one concept. So let me create, let's say Diana. Vera. Experience, let's say 3 female 1. Yeah. We didn't create one field called skills. Maybe let's create that as well. Because for the candidates, we needed a skills as well. What is their specialization? So let me create one more field, skills. पिक लिस्ट के जैसा पिक लिस्ट और एक फील्ड क्रिएट करते हैं. स्पेसिफाई, गोइंग डाउन,
आई थिंक यहाँ भी मैंने नहीं लिखा। नेक्स्ट सेल्स, सी सेल्स फोर्स मैथ्स, ठीक है। गोइंग डाउन, नेक्स्ट visible to all the next. Let me populate this skills value for the existing data set. तो इधर आते हैं and so notice one thing. अभी आपका तो हमने जस्ट क्रिएट किया एनसी लर्निंग एडिशन, वी हैव वेरी फ्यू डेटा, बट जब हम लोग एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होंगे, करेक्ट, तो इन द एक्चुअल प्रोजेक्ट्स देयर आर few things that we need to keep in mind. Okay, like not एक प्रॉब्लम आप देखो यहाँ पे कि सारा का सारा जो डेटा सेट है ये इट इज शोइंग हियर डायरेक्टली, ओके, बट इफ आई वांटेड टू सी द डिटेल, मुझे इनसाइड ओपन करना होगा, देन यू विल सी. Second thing is that not everyone will be working on every data set. Okay, some people like cases वगैरह जब हम लोग देखेंगे तो you don't, I mean access and visibility we will talk in the security topic, but I wanted to do a kind of grouping. Suppose there are few people who are only handling the records of the candidate जिन्होंने USA region से अपना job application दिया है, या someone is there who is only looking for the Salesforce profiles candidates, ठीक है, वो सारी चीजें अपने को चाहिए. तो हाउ डू यू डू इट? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग लिस्ट व्यूज क्रिएट करते हैं. लिस्ट व्यू इज नथिंग बट थिंक ऑफ इट लाइक अ फोल्डर. आपने सपोज एक फोल्डर क्रिएट किया है विद सम फिल्टर क्राइटेरिया और उसमें आपने फाइल्स रखे हैं जो यूजफुल है. सेम थिंग हियर इन सेल्सफोर्स. व्हाट आई वांटेड हियर इज लिस्ट व्यू क्रिएट करते हैं. प्रोजेक्ट में हम लोग बहुत सारे लिस्ट व्यूज क्रिएट करते हैं, ठीक है. लेट्स सी हाउ डू यू डू इट. दिस इज योर ऑब्जेक्ट. यहाँ पे आना, आपका ये ऑप्शन दिख रहा है सेटअप का. लेट्स क्लिक ऑन दिस ऑप्शन सेटअप, न्यू पे क्लिक करो, ठीक है. देन स्पेसिफाई योर लिस्ट व्यू नेम. सपोज मुझे एक चाहिए यूएसए एप्लीकेंट्स, सेलेक्ट किया यहाँ पे. हु कैन सी द लिस्ट व्यू? अच्छा, अगेन पूरा पब्लिक ग्रुप सिक्योरिटी शेयरिंग वो एक फ्यूचर टॉपिक है. जब हम लोग सिक्योरिटी टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे. रूल्स क्या है, पब्लिक ग्रुप क्या है, एंड ऑल दोस. अभी के लिए जब आप लिस्ट व्यू क्रिएट करें, जस्ट सेलेक्ट एवरीवन. At that security topic, I will explain you how do you control this visibility. So this is the list view name और ये उसका API name है, ठीक है. सेव करते हैं. आप सेलेक्ट करोगे यहाँ राइट हैंड साइड में लिस्ट व्यू जैसे ही सेलेक्ट होगा ये फिल्टर क्राइटेरिया, ठीक है. मेक श्योर यू चेंज द फिल्टर. माई एप्लीकेंट नहीं, आई विल नॉट बी द ओनली यूजर, और भी यूजर्स रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे. तो सेलेक्ट करना आप ऑल एप्लीकेंट्स और अपना फिल्टर क्राइटेरिया स्पेसिफाई करना. तो यूएसए एप्लीकेंट्स, हाउ डू यू से, किसी भी एप्लीकेंट की कंट्री अगर यूएसए होगी दैट मीन्स इट्स यूएसए एप्लीकेंट्स. यहाँ पे ऐड फिल्टर में जाते हैं और फिर आपका कंट्री का ऑप्शन लेते हैं. कंट्री का वैल्यू इक्वल्स टू यूएसए. दैट मीन्स दीज आर द रिकॉर्ड व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द यूएसए, ठीक है. तो अभी आपके पास ऑल और रिसेंटली भी यूएसए सेल्सफोर्स बाय डिफॉल्ट देता है. अपना एक लिस्ट भी हो गया, यहाँ पे सिर्फ यूएसए का.
बट आई वांट वन मोर थिंग, मुझे फ्रंट में ही डेटा देखना है यहाँ पे कि और जो फील्ड्स हैं वो कैसे हैं। इस पे जाना आप, अपने लिस्ट भी, मेक श्योर यू आर इनटू योर लिस्ट भी, और इधर आओगे आप तो आपके पास ऑप्शन है सेलेक्ट द फील्ड्स टू डिस्प्ले, क्लिक करते हैं। अभी जो जो फील्ड आपको चाहिए यहाँ से आप चूज कर लो, जो वट एवर यू वांट डिस्प्ले। सो लेट्स क्लिक ऑन फर्स्ट नेम, फिर जाते हैं अपना, लेट्स क्लिक लास्ट नेम, हियर वी गो जेंडर, आई एम सेलेक्टिंग स्क्रीन। आप रीसफल भी कर सकते हो, अगर इसको ऊपर करना है यहाँ से कर सकते हो, नीचे करना है कर सकते हो। एक्सपेक्टेड सैलरी, ईमेल, कंट्री, एज, ठीक है। इधर से you wanted to reshuffle, you can change it. I want a skill setup. Okay, email at the bottom, you can choose it. Save it. So now it's better ना, यहाँ आपको सामने ही सारा डेटा दिख रहा है। You can see this. अच्छा, लिस्ट व्यू से भी आपको एक एडिट का ऑप्शन होता है। इनफैक्ट यहाँ से भी चाहो ना आप रिकॉर्ड को एडिट करना, यू कैन जस्ट चेंज इट ओवर हियर। So what I mean to say that प्रोजेक्ट में हम लोग बहुत सारे लिस्ट व्यूज क्रिएट करते हैं टू शोकेस द डेटा। सपोज सेम वे मुझे एक और लिस्ट व्यू चाहिए, मींस अ फोल्डर चाहिए जहाँ पे कि मैं सिर्फ सेल्सफोर्स वाले एप्लीकेंट्स जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका डेटा देख सकूं। ठीक है, कैसे करोगे आप? सिर्फ इस पे आना, सेटअप पे, न्यू ऑप्शंस क्लिक करना, लिस्ट व्यू का नाम दो आप। व्हाट इज अवर लिस्ट व्यू नेम? मैं इसका नाम दे रहा हूँ लेट्स से सेल्सफोर्स एप्लीकेंट्स। ठीक है, Who can see this list view? अभी के लिए हम लोग चूज करते हैं all the users can see the list view. Let's click on save. फिल्टर बाय ओनर नहीं, all applicants, इसको डन करते हैं, सेव हो गया। अब यहाँ अपना आप क्राइटेरिया स्पेसिफाई करो। सेल्सफोर्स के लिए आई नीड टू अप्लाई द फिल्टर किस बेसिस पे? सेल्सफोर्स का फिल्टर होगा कि आपका जो स्किल्स है कैंडिडेट का वो सेल्सफोर्स होना चाहिए। तो ऐड फिल्टर वाले ऑप्शंस पे जाना, इधर आना आप, एंड इफ यू गो डाउन तो आपके पास ये ऑप्शंस है क्या? Let me skills equals to the value Salesforce। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही, आपको मोर देन वन फिल्टर है ना, यहाँ पे ऐड फिल्टर में जाना, आप चूज करना, अप्लाई करना। बाय डिफॉल्ट जो आपके फिल्टर होते हैं वो आपका, जैसे मुझे चाहिए सेल्सफोर्स यूएसए, तो मैं एक और फिल्टर दे रहा हूँ यहाँ पे कि या सेल्सफोर्स विथ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, आई एम चूजिंग ग्रेटर देन 18। बाय डिफॉल्ट जब आप एक से ज्यादा फिल्टर दोगे ना तो वो आपके एंड में आता है। अगर आपको उसको चेंज करना है कि और में, अगेन शोइंग यू, यहाँ पे आप फिल्टर सेलेक्ट करके इधर जाना और ये ऐड फिल्टर लॉजिक है ना, इसको ओपन करना। ठीक है, नीचे आप आओगे तो आपके पास ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट ये वन एंड में होता है। अगर सपोज मुझे चूज करना है वन और टू, और द एंड एंड और का डिफरेंस पता ही होगा। एंड मतलब अगर आपके एक से ज्यादा कंडीशन है और चाहते हो आपकी when all the conditions are true, जब आपके सारे conditions true है तभी आपका ये true हो, तब के लिए हम लोग and use करेंगे। when you have more than one condition and if any of the condition, अगर कोई एक भी conditions true है and then you want your entire, तो उसके लिए अपन लोग और use करेंगे। ठीक है, so that's the thing, I am keeping it as and only one and three, जैसा भी आपको देना है आप दे सकते हो। ठीक है, let's cancel it. So this is our filter criteria. फ्रंट पे आई नीड टू सी द फील्ड्स, सो अगेन हियर आई एम इनटू माय लिस्ट व्यू, अपने लिस्ट व्यू के अंदर हूँ और यहाँ से आप चूज कर लो कौन से आपको फील्ड, इस वाले पे जाना है और यहाँ आपके पास ऑप्शन है सेलेक्ट द फील्ड टू डिस्प्ले। इधर जाओ आप, जो जो फील्ड आपको चाहिए यहाँ से चूज कर लो। तो मैंने सेलेक्ट किया फर्स्ट नेम, फिर नीचे आते हैं, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया लास्ट नेम, हियर वी चूज जेंडर, skills, phone, expected salary, experience, I wanted to keep it down, save। That's how you can do। आपका जो by default all list भी है all candidates का, उसमें भी अपने को let's say you wanted to show all means all, there is no filter criteria, correct, but what are the fields you wanted to showcase। अच्छा, इसका भी एक चीज आप याद रखो,
लाइक इन माई प्रोजेक्ट्स जो हमारे यूजर्स है वो टैब यूज करते हैं, ठीक है। टैब में 5 कॉलम ही दिखता है, अगर इवन इफ यू स्पेसिफाई, आई थिंक डेस्कटॉप में अप टू 15 दिख जाता है, बट टैब का आई नो इवन इफ यू स्पेसिफाई 5-10 कॉलम्स इन द फ्रंट, मैक्सिमम 5 फील्ड्स आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका एप्लीकेशन टैब के लिए भी अलाउड है और कोई लिस्ट का रिक्वायरमेंट होगा तो मेक श्योर यू आस्क दिस क्वेश्चन की कौन से प्राइमरी फील्ड है। बट हमारा यूजर स्टोरी जब व्हेन वी गेट, हमारा स्पेसिफिकली रिटर्न होता है कि आई वांट दीज 5 फील्ड्स एट द फ्रंट, ओके, एट द बिगिनिंग, जो मेन प्रायोरिटी फील्ड है। तो हियर यू गो, सेलेक्ट द फील्ड्स टू डिस्प्ले एंड जो भी फील्ड आपको ऑप्शन चाहिए यहाँ पे आप चूज कर लो। I am selecting the first name, then going down, I am selecting this last name, gender, expected salary, here I am selecting experience, फिर से नीचे आते हैं, आपका है skills, कौन है, country है, age है, और ये email है, सारा सेलेक्ट किया, all your data is listed over here. Okay, that's how you can create the list. All of you, is it clear till now or any doubts or questions? Everyone? No doubt, sir. Okay. I have an assignment for all of you. Just that how we created this, you have to create a custom list because you will use it in the future. Application एक setup करना plus ये वाला assignment भी try करना जो हमने क्लास में किया, but you try this thing. Create a new custom object. Student, we will be using this object at a later stage. So you set up. कौन से field लेना? Name जो है, जो standard field, let it be as a name. Don't replicate first and last. Name, gender, I am writing here. List. Marks, how much marks he is getting. What is the subject specialization of the student? Then the country that he or she belongs to. Email and so on. I think this much should. And mentor teacher email for the student. उसका mentor teacher कौन है, ये field भी आप select कर लेना. It will be useful later. ठीक है. Data type, it's clear from here only. इसका number होगा, इसका वैल्यू होगा पिक लिस्ट, सिंगल पिक लिस्ट आप रखना, कंट्री को भी आप पिक लिस्ट रखना, ईमेल को आप ईमेल रखना, फोन को यू सेलेक्ट फोन, और ये वाला जो ईमेल है इसको भी आप ईमेल ही रखना, ठीक है। वंस यू हैव दिस, फिर आप अपना यहाँ पे लिस्ट व्यूज, क्रिएट अ list view to show only India. Okay. You need to just use the filter based on the country equals to India. Okay. So that's the thing. Now let's proceed. So I will also share one PDF notes for your reference to go through that. So right now we have this. Now इधर आते हैं. एक चीज है, before I move on to the talking about the standard objects and what is the life cycle of sales cloud and service cloud. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग इन अ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज अ मल्टी कंट्री, ठीक है, वी इनेबल, अभी कोई भी यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, जैसे मैंने ये एक्सपेक्टेड सैलरी फील्ड दिया, बाय डिफॉल्ट ये डॉलर में ही ले रहा है, ठीक है, बट अगर कोई इंडिया में आपका है तो इंडिया वाले के लिए तो डॉलर नहीं होगा ना, उसका तो अपना करेंसी तो रुपीज है, करेक्ट। सेम वे आई मीन किसी और भी कंट्री का है तो देयर द वैल्यू विल बी डिफरेंट, करेक्ट, दैट्स व्हाट वी वांट। तो इनका वे, ठीक है, जिससे कि हम ये कर सकें। तो इट्स अ वन टाइम एक्टिविटी, आई एम टेलिंग यू, गो टू द सेटअप, फिर हर ऑब्जेक्ट के लिए आपको करेंसी फील्ड दिखेगी, और सेटअप में
यहाँ पे आप टाइप करना करेंसी, नॉट करेंसी, कंपनी इंफॉर्मेशन, लेट मी फाइंड आउट। You also need to specify, one second, huh? तो लाइक आपका यूरोप रीजन में है, यूएसए रीजन में है, दैट ऑल दोस थिंग्स यू वांटेड, सो यू नीड टू सेट अप ओवर हियर। तो कंपनी इंफॉर्मेशन में आप आना, यहाँ पे पहले चीज कंपनी इंफॉर्मेशन से यू कैन सी ऑल द डिटेल्स अबाउट योर ऑर्ग। जैसे यहाँ पे आप देखोगे मेरा टाइम जोन क्या है, ये देखो लॉस एंजलिस का मेरा टाइम जोन है, आई मीन इस ऑर्ग का, दैट्स व्हाई आई गेट लॉस एंजलिस टाइम जोन। इसे डेवलपर एडिशन, ये आपकी ऑर्ग आईडी है। जब आप सेल्सफोर्स केसेस इरेज करते हो ना, आई मीन मेनी टाइम्स आपको सपोर्ट के लिए सेल्सफोर्स पे पास जाना होगा, सेल्सफोर्स आस्क फॉर दिस ऑर्ग आईडी, से आपका ऑर्ग आईडी यहाँ आपको दिख जाए कितना यूजर लाइसेंस। फ्री ऑर्ग है सेल्सफोर्स, जो कि मेन लाइसेंस हम लोग यूज करते हैं, 2 ही है फ्री ट्रायल ऑर्ग, इस फ्री वाले ऑर्ग में, ठीक है। ये दीज आर द परमिशन सेट्स, यू कैन सी फीचर लाइसेंस है, आई मीन इस ऑर्ग के साथ साथ क्या क्या अपने को मिल जाए। तो ये देख रहे हो एजेंट फोर्स का 5 लाइसेंस अपने पास है, रिमेनिंग लाइसेंस और 1 मैंने यूज कर रखा है। तो दीज आर द थिंग्स हियर यू कैन सी। अभी आपको मल्टी करेंसी सेटअप करनी है, ठीक है। तो इधर आना, आप एडिट करो। इधर जैसे आप एडिट में जाओगे, वेयर इज दिस ऑप्शन, आइडियली इट शुड बी, लेट मी सेट। Here you see, अच्छा इस नए वाले में नीचे आ रहा है, in my previous instance I have that down. You see we have this checkbox, activate multiple currencies, ठीक है। ये वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार आपने मल्टी करेंसी सेटअप कर दी, फिर आप तो हमेशा हर एक ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में आपको मल्टीपल करेंसी फील्ड दिखेंगे। आई एम चूजिंग लेट्स से मल्टीपल करेंसी एक्टिवेशन, ओके, सेव इट। व्हाट इट्स सेइंग, रिव्यू ऑल द कैरेक्टर नेम इज रिक्वायर्ड, अच्छा security contact information, I'm giving my, अच्छा ये ट्रांसलेशंस के भी सेटिंग, सेव हियर। नीचे अभी आप आना, आप इट टुक माय एड्रेस, ओके फाइन। जैसे मैंने मल्टी करेंसी इनेबल किया, यू सी यू स्टार्ट गेटिंग दिस बटन करेंसी सेटअप, ठीक है। करेंसी सेटअप में जाना, और जो जो करेंसी आप इनेबल करना चाहते हैं हियर यू कैन एंटर। अब अपना यूएसडी है, आपको अगर कोई आईएनआरबी चाहिए, करेंसी टाइप यहाँ से जाके आप सेलेक्ट करो। तो हर एक कोई भी करेंसी फील्ड आप सेलेक्ट करोगे ना, तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा कि ये भी है कन्वर्जन रेट, आप यूएसए के डॉलर के साथ यू हैव टू स्पेसिफाई, आई थिंक राइट नाउ इट्स 95, बट ये ना हम लोग यूजुअली भी कीप मास अपलोडिंग ऐसा चेंज करते रहते हैं, अगर कन्वर्जन रेट भी इफ यू वांटेड टू चेंज, ये कोई बैच प्रोसेस डिफाइन कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पे आपका करेंसी इनेबल हो गया, मल्टी करेंसी। तो अभी कोई भी आप जब करेंसी फील्ड ओपन करोगे ना, क्रिएट करोगे, तो कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट करोगे, तो आपको ये करेंसी का भी फील्ड यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। अभी हमने 2 करेंसी दिया है, सो 2 करेंसी के फील्ड ऑप्शन है, जो भी है इट्स अ वन टाइम एक्टिविटी। तो मल्टी करेंसी आपके लिए और के लिए इनेबल हो जाएगी, ठीक है। टिल नाउ ऑल क्लियर एवरीवन? ऑल क्लियर? Yes, sir. Yes. Okay. So let's proceed.
सो अभी तक हमने क्या देखा कि ऐप कैसे क्रिएट करते हो, कस्टम ऑब्जेक्ट कैसे सेटअप करते हैं टैब्स के थ्रू, एंड लिस्ट विद कंट्रोल्स हमने देखा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट. एक टर्म यू विल कीप हियरिंग इन इंडस्ट्री, सेल्स क्लाउड एंड सर्विस क्लाउड. ओके, इट्स बेसिकली a domain. I mean the backend is same. Any application that is working in the sales domain, you can call it as a sales cloud application. I mean किसी भी sales operations में क्या होते हैं, you do some marketing activities, correct? One question I doubt people will ask, but it's good to know, because जब आप प्रोजेक्ट में काम करोगे आपके पास यूजर स्टोरीज आएंगी, रिक्वायरमेंट आएंगी, तो वहाँ ये सारी चीजें रिटर्न रहेंगी, लाइक create a lead, do an automation on the whenever any opportunity stage is changing to close, create a case record into the system. I mean when you hear this term, what is leads, what is opportunity, what is cases and all, you must be aware. आप जब ये सब टर्म सुन रहे हो तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए इनका मतलब क्या है, करेक्ट, बिजनेस में. To understand any application running in sales domain, we can call it in the sales cloud application. तो sales operations की लाइफ साइकिल क्या है, ठीक है. There are certain standard objects. Primarily जब Salesforce आया था, सेल्स और सर्विसेज के लिए था. अभी हेल्थ केयर में भी होता है, कंज्यूमर गुड्स में भी होता है, बैंकिंग में भी, एवरी डोमेन इट यूजेस, ठीक है. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. सो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट आई वांटेड इज, लेट्स से any sales operation, from where it will start, it start with campaigning. What is campaigning? It's a branding, it's a marketing activities, okay, that you do for your project. कैसे सेटअप करोगे सेल्सफोर्स में कैंपेन, यहाँ देखो आप, कम ओवर हियर, रिमेंबर दिस थिंग. अभी जो लाइक आई सेड व्हेन आई यूज द टर्म स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स, so स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स आर समथिंग जो कि ऑलरेडी सेल्सफोर्स में प्रोवाइडेड है, ठीक है. सो यू डू नॉट नीड टू क्रिएट your standard objects, okay. You can change the fields and the layout as per your need. आपको standard objects में चाहिए, but this is something Salesforce already do for you. Going down, so standard objects के लिए आपको टैब भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. Here you go, click on the pencil icon, you can include it. I am selecting add more items, all में जाते हैं और फिर यहाँ से select करते हैं first object is campaign. So what is meant by campaign? Select किया. So it's a standard object. That's why here you see. अभी देखो by default when I'm trying to include campaign, मुझे new button option ही नहीं आ रहा. You will also face, क्योंकि ये new instance है, नया org है which जो मैंने setup किया है. एक settings है. Go to the setup and make sure you enable your user for the, अपना username type करना. My username is come over here and edit your user. एडिट करके आपको ये जो मार्केटिंग यूजर का चेकबॉक्स है ना, इसको इनेबल कर देना. लेट मी इनेबल फ्लो यूजर नेम दिस चेकबॉक्स, बिकॉज सर ये इनेबल क्यों कर रहा है? because you are not able to get the option for a new here for the campaign, okay, because campaign is primarily used in the marketing activities. आपका यूजर मार्केटिंग यूजर होना चाहिए, okay? तभी आप कैंपेन रिकॉर्ड क्रिएट कर पाओगे. So that's why I'm saying, if you don't see this option, like right now I'm not seeing this option, make sure your user is marketing user enabled, okay. सो सर ये जब तक मैं मार्केटिंग वाला ये मार्केटिंग यूजर में जब तक चेक मतलब क्लिक नहीं करूंगा तो तब तक क्या मुझे ये कैंपेन है और जितने मेरे सेल्स क्लाउड के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो भी विजिबल नहीं होंगे या नहीं, सारे ऑब्जेक्ट दिखेंगे. कैंपेन केवल ऑब्जेक्ट कैंपेन विजिबल होगा आपको. यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट एनी कैंपेन. ओके ओके कैंपेन विजिबल है बट आई एम नॉट एबल टू क्रिएट एनी बिकॉज़ माय यूजर इज नॉट अ मार्केटिंग. ठीक है सर, थैंक यू. So I'm enabling my user as a marketing user. Save it. Now let me refresh. अपने को दिख रहा है, ठीक है. When you click on new, automatically आपको ये सारी फील्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है. These are the fields जो Salesforce ने क्रिएट किए based on the feedback की yes to do any campaigning, to do any marketing activity. ये सारे फील्ड तो लगते ही हैं, ठीक है. बट यू कस्टमाइज इट. ऐसा नहीं कि अपने प्रोजेक्ट के लिए जब आप काम करोगे तो व्हाटएवर इज द डिफॉल्ट, व्हाटएवर इज द स्टैंडर्ड जो Salesforce दे, वी कीप दैट.
वी कस्टमाइज इट. हमको अपने प्रोजेक्ट के लिए लाइक मेरा कैंपेन है, वी हैव इवन चेंज दिस लेआउट. लेआउट वगैरह कैसे चेंज करते हैं हम लोग पेज लेआउट डायनेमिक फॉन्ट्स वाले टॉपिक में पढ़ेंगे. बट हियर वी डिड दिस सेटअप. यू क्रिएट डिफरेंट हेडर्स एंड ऑल. अभी कोई फील्ड आपको न्यू चाहिए, कोई नया फील्ड क्रिएट करना है, यू कैन डू. सर मेरा क्वेरी था कि सर कैंपेन जो बना रहे हैं सर इसका मतलब मोटिव कैंपेन क्यों बना रहे हैं और आई एम कमिंग टू दैट. आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट. आई एम कमिंग टू दैट. व्हाट इज कैंपेन? वी विल कमिंग टू दैट डेफिनेशन. ठीक है. तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि ये लेआउट वगैरह भी हम चेंज करेंगे. इनफैक्ट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स पे आप अपना कस्टम फील्ड भी क्रिएट करना चाहोगे तो सेटअप पे जाना, ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाना एंड यू सर्च योर ऑब्जेक्ट लाइक इन दिस, and here you will go to the fields and relationship and you can create your own custom fields. अभी जो fields है वो standard है, वही आपको दिख रहा है. Now coming back to this point, what is meant by campaign? ठीक है, why do we create it? So in any sales operation, sales cloud life cycle, whether आपकी जो भी कंपनी है, भले ही आप प्रोडक्ट, whether you are selling a product और या आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, IT services, training services, project services, any kind of thing. So, how will the end customer know about your product or services? Unless and until you do some branding, right? You do some marketing. So, campaign is nothing but it's a pre-sales marketing activities that you do so that the end user or the customer can get to know about your product or service. Now remember one thing, in Salesforce, the actual campaigning we do not do in Salesforce. The actual campaigning you will do out there on the streets. But whatever campaigning you are doing, जो भी campaigning आप कर रहे हो उसमें जितने भी आपके whatever money you are spending, कितना उसका प्रॉफिट है, वो सब somewhere you need to log in the Salesforce. क्योंकि later अगर if I am the business owner, so I would like to know ना कि मैंने इस मंथ में जो भी campaigns पे अपने पैसे खर्च किए हैं, what is my ROI, as part of the campaign कितने leads वगैरह generate हुए, those things. So for that Salesforce has given you this object called campaign. Salesforce का एक separate product भी है marketing cloud. बहुत लोग marketing cloud में भी अपना जाते हैं. There's a separate domain. There you don't use the admin and other things. वहाँ पे जैसे आप बहुत बड़े देखते हो ना कि email campaigning, आपके email inbox में so many spam emails you get, right? This property and other things. Do you think someone types that? No. सेल्सफोर्स का भी एक वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू करते हैं, बट सेल्सफोर्स का भी अपना एक खुद का टूल है, मार्केटिंग क्लाउड टूल. पहले एक अलग था बट सेल्सफोर्स ने एक्वायर कर लिया इसको लॉन्ग बैक एंड रीब्रांडेड इट एज इट्स ओन प्रोडक्ट. सो विद दैट यू कैन डू ईमेल स्टूडियो, ईमेल कैंपेनिंग, दोज काइंड ऑफ थिंग्स. जो लोग मार्केटिंग क्लाउड में कैरियर बनाते हैं उस पर जाते हैं, बट इट्स अ सेपरेट डोमेन. व्हाट यू आर डूइंग ओवर हियर यू वोंट बी डूइंग, दैट इज जस्ट फॉर ईमेल कैंपेनिंग एंड ऑल. But within here, in your sales services applications या कोई भी किसी वगैरह में, कैंपेनिंग का मतलब ये हुआ कि इट्स अ प्री सेल्स मार्केटिंग एक्टिविटी, द ब्रांडिंग एक्टिविटी. सो वेयर यू विल लॉग इन द सेल्स. ठीक है, तो उसके लिए ये ऑब्जेक्ट है. लेट्स क्लिक. सर एक चीज़ और पूछनी थी. जैसे भी नॉर्मली ये पूछा जाता है कि सेल्सफोर्स एडमिन या बीए के साथ सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, मीन आई थिंक 80 to 85% ये पूछा जाता है कि भाई सेल्स और सर्विस की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए. बट अगर इन दोनों से अलग कोई अगर ऐसा क्लाउड हो कि जिसमें भी ओपनिंग भी ज़्यादा हो और आगे कैरियर भी थोड़ा स्टेबल हो, ठीक हो, अभी तो सारा वो वाला कौन सा? क्लाउड. जो क्लाउड जो है वो आपका डोमेन हो गया. ठीक है, I mean, जैसे अगर मैं अभी कंज्यूमर क्लाउड पे काम कर रहा हूँ. कंज्यूमर गुड्स क्लाउड में जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स उसका यू नीड टू नो दोस टर्मिनोलॉजी. I mean, थोड़ी चीज, but backend is this only. I do admin and development and policy integration, those kind of things. वहाँ आपके I mean किसी क्लाउड में रिटेल स्टोर्स क्रिएट करते हो, विजिट एग्जीक्यूशन भी डू, विकेट असेसमेंट इंडिकेटर, असेसमेंट टास्क डेफिनेशन, वो विजिट स्ट्रेटेजी क्लाउड का ऑब्जेक्ट है. हर क्लाउड का I mean just 2 days you can get to know. Domain could be anything, but you do. So हेल्थ क्लाउड में भी यूज होता है आपका. सीजी क्लाउड कंज्यूमर गुड्स में भी काफी ज्यादा यूज होता है. सेल्स सर्विसेज तो प्राइमरी सेल्स प्रोसेस domains I am saying, but your backend is this only. Now which domain project that you are going to assign, that you want to get to know. Community cloud कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा होते हैं, but there also we get LWC component and other things. Okay, so that's what I am saying. I mean to say cloud is basically your specific domain that you do.
But the back end Okay. part that will be doing, that you do. Consumer clouds में we create community portal like the company की website जो होती है, वहाँ पे there also you enable, you drag and drop your flows, your objects, your expose and all. थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, तो we need to, like जब भी आप क्लाउड स्पेसिफिक जिस पर क्लाउड का प्रोजेक्ट है थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है? That's the thing. सर हम Okay, अभी sir. कौन से क्लाउड पर काम कर रहे हैं सर, अभी जो हम कर रहे हैं अभी? हम लोग एडमिन पढ़ रहे हैं, क्लाउड स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है? बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू सेल्स सर्विस क्लाउड का लाइफ साइकिल अभी राइट नाउ, क्योंकि दिस इज अ सेल्स प्रोसेस दैट वी आर लर्निंग। क्लाउड स्पेसिफिक भी ट्रेनिंग होती है, अगर आपको प्रॉपर सर्विस क्लाउड का ट्रेनिंग करना है। सर्विस क्लाउड में हम लोग आइंस्टाइन बॉट्स वगैरह क्रिएट करते हैं, बॉट्स का डिप्लॉयमेंट करते हैं, वहाँ केस मैनेजमेंट होता है, इंटाइटलमेंट वगैरह का कॉन्सेप्ट, कुछ चीजें परसेंट आई एम सेइंग दैट इज डोमेन स्पेसिफिक थिंग, स्पेसिफिक क्लाउड के लिए जो चीजें होती हैं। अभी जो आप कर रहे हो एडमिन का काम करो, जो हर क्लाउड में आपका होगा, वेदर यू आर सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, सीजी क्लाउड, हेल्थ क्लाउड, जिस भी डोमेन का प्रोजेक्ट में आप काम करो, ठीक है? प्राइमरीली सेल्स क्लाउड सेल्स एंड सर्विसेज में होता है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग द सेल्स क्लाउड एंड सर्विस क्लाउड लाइफ साइकिल, ठीक है? जो इन डेप्थ प्रॉपर सेल्स क्लाउड के या सर्विस क्लाउड के कुछ कुछ फीचर्स होते हैं, वो सेपरेट ट्रेनिंग में भी होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है? इसमें आप एडमिनिस्ट्रेटर देख रहे हो, जो बैक एंड आप ऑपरेशन करोगे। बट आइडियली क्लाउड स्पेसिफिक आपको ट्रेनिंग नहीं करनी होती है। आई हैव वर्कड ऑन सो मेनी क्लाउड, सेल्स सर्विसेज, हेल्थ क्लाउड, कंज्यूमर गुड्स क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, थोड़ी बहुत 10-20% यू विल फाइंड सम एक्स्ट्रा। आपका ऑब्जेक्ट्स स्टैंडर्ड्स हैं 2000 एक्स्ट्रा, दैट व्हेनेवर व्हिचएवर प्रोजेक्ट यू गेट असाइन, जस्ट learn from the Salesforce documentation, because there also you will create flows, you will create objects, you will create your development and other things. Okay, make sense? सर आपने कल एक नाम लिया था LWC का, तो वो सर मेरा क्वेरी था कि LWC कंपोनेंट क्या होता है सर? कल भी आपने जिक्र किया था और आज भी सर आपने जिक्र किया है हाँ, LWC। तो LWC, अच्छा देखो अभी आप एडमिनिस्ट्रेटर पढ़ रहे हो, वी आर लर्निंग द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, ठीक है? डेवलपमेंट में हम लोग एपेक्स प्रोग्रामिंग इंटीग्रेशंस वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद एक LWC की ट्रेनिंग होती है, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। सेल्सफोर्स के फ्रंट एंड में कस्टमाइजेशन कुछ करना है, कोडिंग वगैरह करना है, तो उसके लिए हम लोग LWC कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं। LWC इटसेल्फ इज अ सेपरेट ट्रेनिंग, 1.5 महीने की ट्रेनिंग होती है। सो आफ्टर एडमिन डेवलपमेंट आपको अगर LW डेवलपमेंट में एक मॉड्यूल भी डू एज अ बोनस, तो यू विल गेट सम आइडिया। बट LWC की भी अगर सेपरेट जानोगे, एडमिन डेवलपमेंट LWC सब जान जाओगे, तो यूल बी लाइक 90% रोल्स जो मार्केट में है वो सारी चीजें आप जान जाओगे, ठीक है? दैट इज LWC इज बेसिकली द Salesforce प्रोग्रामिंग टूल टू डू एनी changes into the front end, ठीक है? बट अगेन LWC is not part of this thing, LWC is a separate thing। ये सब देख रहे हो LWC का, हम लोग LWC के बेसिस में करते हैं, प्रोग्रामिंग भी करते हैं। डेवलपमेंट में हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, एपेक्स इंटीग्रेशन बहुत सारी चीजें। LWC के एक मॉडल करेंगे, so that's what I mean to use the term LWC, ठीक है? Okay, let's get back to the topic. So clear now or any doubts further? Yes, sir. Okay, यस सर। so yeah, so what I mean to say here is, suppose अभी हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। सेल्स क्लाउड का कोई भी ऑपरेशन, आई मीन योर सेल्स ऑपरेशंस लाइफ साइकिल फर्स्ट स्टार्ट्स विद द कैंपेन। So what do you mean by campaign? Campaign is basically a pre-sales marketing activities. Okay. अभी आप कोई भी बिजनेस एंटिटी हो, you are a big business domain, you must do some marketing activities. So for that, where you will capture that data? So उसके लिए अपने लोग Salesforce में कैंपेन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है? जब रिलायंस जियो ने when Jio started launching this new SIM card, what did they do? They started distributing SIM card for free. उन्होंने SIM card free में distribute करना चालू कर दिया, ठीक है? And then they basically that was a branding strategy, marketing strategy, so that उनको end users, end customers, they can get a good, I will say, customer base, ठीक है? So in Salesforce, you can capture over here. So when I try to create the definition of campaigning basic is any pre-sales, branding or marketing activity. Suppose here I am planning called Adidas
Choose advertising. Your campaign making it active. अच्छा, एक और टर्म आप इंडस्ट्री में यू विल कीप हियरिंग, लोग यूज करते हैं, डायरेक्ट कैंपेन एंड इनडायरेक्ट कैंपेन. व्हाट इज मीन बाय डायरेक्ट कैंपेन, व्हाट इज मीन बाय इनडायरेक्ट कैंपेन? तो इनडायरेक्ट कैंपेन इज समथिंग जहां पे आपका बायर और सेलर के बीच डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है. देयर इज नो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द बायर एंड द सेलर. फॉर एग्जांपल, सपोज एप्पल व्हेन इट इज लॉन्चिंग ए न्यू आईफोन सीरीज, सो व्हाट दे डू, वो यूट्यूब चैनल्स पे, फेसबुक पे या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, टेलीविजन चैनल्स पे, दे रन सम एडवर्टाइजमेंट, करेक्ट? They will hire some sports person or some big celebrity, and they will talk about the features of that product, and they basically create advertisement, correct? And those ads, those advertisements are basically shown on the television channel. That impacts the consumer viewer. I mean, those are the mass media. I mean, newspaper पे भी advertisements आप देखते हो, many people are subscribed. So with those things, basically you get to know about that specific product or services. So when you get influenced, then you might go, if you like the product, you can buy it. So this mode of campaigning, ये जो मोड है आपका कैंपेनिंग का, जहां आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है बायर और सेलर के बीच में, इस मोड ऑफ कैंपेनिंग को हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट कैंपेन. ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्ट कैंपेनिंग होती है. आपकी डायरेक्ट कैंपेनिंग क्या हो गया? सर डायरेक्ट कैंपेनिंग हो गया कि आपका बायर और सेलर के बीच डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर दैट मैटर, लेट्स से सपोज देयर इज ए कंपनी दैट प्रोवाइड्स स्किल ट्रेनिंग. इसी का क्रोमो का एग्जांपल. नाउ यू come across this specific thing by some enemy. Now what you wanted is you wanted to talk to their sales executive या trainer से, so that जो भी आपका क्वेश्चंस है, डाउट्स है, so you can clarify directly with the trainer या उनके जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव हो से बड़ी कनेक्ट होते हैं. तो इस मोड ऑफ कैंपेनिंग में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है बायर सेलर के बीच, राइट? So this type of campaigning is something which you can refer as direct campaign in sales. ठीक है? So that's the meaning. So let's create a recall. It does through advertisement. What type of campaign it is? Let's say कोई conference है या कोई webinar organize कर it's a trade show, referral program है, you come to know via some referral. I'm saying let's say it's a trade show that is gonna happen. आपका campaign का status क्या है? I mean you can again for your project need, अगर आपको कुछ और स्टेटस कैंसिल देना है, कैंसिल दे सकते हो. अबाउटेड नहीं, you can change it. There is a way you can customize the pick list values as well. I mean pick list तो I mean this one तो you can directly do. You just go to your object, whichever field that you wanted. Let's say in this type field I wanted to have some other options. इधर जाना, आप अपना ओपन करना और यहाँ पे आपके पिक लिस्ट ऑप्शंस है, कोई पिक लिस्ट ऑप्शंस है, इतने सारे. ठीक है, I mean in this layout only these are applicable. If you do not want to use it, you can deactivate it. You wanted to introduce certain new fields, यहाँ न्यू क्लिक करना और आपका फिर अलाउ हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, दैट इज द थिंग. तो इधर मैंने सेलेक्ट किया स्टेटस, लेट्स से प्लान, स्टार्ट डेट सपोज, और लेट्स से आई एम कॉलिंग इट इन प्रोग्रेस, और ये कैंपेन सपोज आई एम सेइंग दैट इट स्टार्टेड टुडे, और ये कैंपेन आपका एक वीक के लिए चलेगा. ठीक है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू. इस कैंपेन को रन करने से यू मस्ट हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशन, राइट? हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी एंड द रेवेन्यू दैट यू विल बी जनरेटिंग आउट ऑफ दिस कैंपेन, वो यहाँ सेलेक्ट करो. एक्सपेक्टेड रेवेन्यू आउट ऑफ दिस कैंपेन आई एम सेइंग लेट्स से आई एम सेइंग $5,000. बाय डिफॉल्ट आई विल सेलेक्ट द करेंसी यूएसडी. बजटेड कॉस्ट टू रन द कैंपेन. किसी भी कैंपेन को रन करने के लिए इट नीडेड सर्टेन मनी, राइट? सम कॉस्टिंग चाहिए होता है. तो मैंने बोला इस कैंपेन को रन करने में सपोज $100. एक्चुअल कॉस्ट सपोज $100 वाज एलोकेटेड टू रन दिस कैंपेन. जो भी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पैम्पलेट्स वगैरह आपको प्रिंट आउट करवाने हैं, यूनिटी बुक ऑफ वेन्यू एंड ऑल व्हाटएवर. सो दैट्स वेयर यू आर कैप्चरिंग दिस कॉस्टिंग. एक्चुअल कॉस्ट इन द कैंपेन. सो यस, $100 वाज एलोकेटेड एज अ मनी टू रन दिस कैंपेन, बट आपका एक्चुअल कॉस्ट हो सकता है उससे ज्यादा, उससे कम हो, या एक्चुअल सेम भी हो. So that we can say expected response. So as part of this campaign, suppose you are expecting that if I am reaching out to 100 people, at least 80 of them will respond. That's your expectation based on your groundwork. ठीक है,
So I'm saying that कि अच्छा 80% मेरा रिस्पॉन्स होगा. नंबर सेंड इन द कैंपेन, कितने लोगों तक यू आर ट्राइंग टू रीच आउट, सपोज parent campaign. अच्छा, this is a relationship field. We have a topic of relationship in admin training where we will cover how to set up relationship and all. अभी के लिए यहाँ पे इसको हम लोग ब्लैंक सेलेक्ट करते हैं एंड ऑल इसको सेव. तो ये आपका डेटा आ गया. यहाँ डिटेल्स में जाओगे, आपका रिकॉर्ड्स दिखेगा. रिलेटेड लिस्ट, जब रिलेशनशिप यहाँ जो हमने वैल्यू फिल किया यहाँ पे देख सकते हैं आप, यू कैन सी रिलेटेड लिस्ट कैंपेन से जो भी. सर करेंसी आईएनआर में सेट की थी अपने डॉलर में, ये तो मेरा बाय डिफॉल्ट डॉलर ले लिया मैंने, करेंसी में कुछ वैल्यू सेलेक्ट ही नहीं किया. ठीक है, अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो. सबसे नीचे में आपका बाय डिफॉल्ट करेंसी है, तो बाय डिफॉल्ट मेरा यूएसडी ही ले रहा है. आपको चेंज करना है इधर को, आई एम कीपिंग इट इन द यूएसडी ओनली, क्योंकि मेरा सारा वैल्यू यूएसडी का ही है. सो लेट मी चेंज दिस करेंसी. साइड बाई साइड आप ला सकते हो पेज लेआउट्स में जाके, विच वी डू. आप अपना पेज लेआउट में जाना, कैंपेन का जो भी लेआउट है ना, देयर इज अ टॉपिक ऑफ पेज लेआउट्स, वहां पे मैं बताऊंगा. ठीक है, तो अभी आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, बट जो जहां भी आपको करेंसी का लोकेशन उसको साइड में कर देना, आपके जो अमाउंट है. दैट्स हाउ वी डू, एंड देन यू कैन चेंज इट. तो आई एम सेलेक्टिंग यूएसडी एज अ करेंसी. ओके, so here you have this data right now, you can see. आपके कैंपेन रिकॉर्ड में रिलेटेड लिस्ट भी है. रिलेटेड लिस्ट में एक कैंपेन की हायरार्की क्या है. आई विल कम टू द रिलेशनशिप टॉपिक, इट्स अ फ्यूचर टॉपिक. अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, इस कैंपेन के साथ एसोसिएटेड लीड्स कॉन्टेक्ट क्या है, व्हाट इज लीड, व्हाट इज कॉन्टेक्ट, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी, वी विल सी इन फ्यू टाइम. ठीक है, तो यहाँ आपका डिटेल्स आपका दिख गया. बिकॉज इट्स ए स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, सो सेल्सफोर्स बाय डिफॉल्ट ये एक्टिविटी टैब आपको, एक्टिविटी में आप यू कैन कैप्चर एज पार्ट ऑफ दिस कैंपेन कोई एक्टिविटी आप कर रहे हो. विद इन दिस कैंपेन रिकॉर्ड, यहीं से आपको किसी को ईमेल भेजना है. ईमेल फील्ड पे क्लिक करो, यहाँ टू में उसका एड्रेस लेट इट गेट लोडेड फ्रॉम, यहाँ पे टू, यहाँ पे एड्रेस स्पेसिफाई कर दो, कोई सीसी में रखना उसको सीसी में भी डाल दो. प्रोवाइड योर कंटेंट सेंड करना विद इन द कैंपेन, फ्रॉम विद इन द कैंपेन आप ईमेल सेंड कर सकते हो. ठीक है, टू एनीवन आउटसाइड. एज पार्ट ऑफ दिस कैंपेन सपोज कुछ टास्क वगैरह प्लान है आपका, कोई न्यू इवेंट प्लान है, यू कैन कैप्चर. टास्क इटसेल्फ इज ए स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट इन सेल्सफोर्स व्हिच इज एसोसिएटेड विद एनी. अभी ये टास्क मैं क्रिएट करूंगा, इस कैंपेन के साथ एसोसिएट हो जाएगा. सो आई एम सेइंग लाइक देयर इज अ quotation that I need to send by, I am saying let's say tomorrow. ठीक है, और इस टास्क, दिस इज रिलेटेड टू दिस कैंपेन एंड दिस टास्क आई एम assigning to myself, and the status of this task I am saying is not started. Now we say, अभी आपका एक्टिविटी टैब में ये ऑप्शन दिख जाएगा. ठीक है, इट विल आल्सो एक्ट एज अ रिमाइंडर व्हेनेवर आई ओपन दिस रिकॉर्ड. और सो यू कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स. In Agentforce we do such applications where we build such agents, Agentforce training में कि where you give it any specific campaign and tell ask you to summarize it. तो आपको समरी में बता देगा, पूरा देखेगा वो कन्वर्ट साइट, any activities and other things are planned over here. Based on this वो बताएगा आपको कि प्रोबेबिलिटी क्या है इस कैंपेन के सक्सेस होने की. सपोज कोई कैंपेन आपने क्रिएट किया, कोई इंटरेक्शन नहीं दिख रहा है, कोई एक्टिविटीज ही नहीं दिख रही है, that means no groundwork has been done, right? So less probability कि उस कैंपेन से कुछ आउटकम जनरेट हो. करेक्ट, so that is the thing. Here I created this campaign record. Okay, now एक और कैंपेन रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं. इधर आते हैं. सपोज एज पार्ट ऑफ दिस एडिडास शूज एडवर्टाइजमेंट देयर इज वन मोर कैंपेन दैट इज एक और कैंपेन इस एडिडास शूज एडवर्टाइजमेंट के अंदर रन कर रहा है. विद इन दिस क्लिक ऑन न्यू. मैंने बोला इसको जैसे एडिडास शूज एडवर्टाइजमेंट वन. व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस कैंपेन. इसका स्टेटस एक्टिव हो गया. व्हाट टाइप ऑफ कैंपेन, सपोज ये कॉन्फ्रेंस है, स्टेटस क्या है इसका, इन प्रोग्रेस में है. स्टार्ट डेट सपोज आज ही स्टार्ट हो रहा है. और कितने दिन की ये कैंपेन चलेगी, आई एम टेलिंग कि ये कैंपेन आपका चलेगा 3 दिन. ठीक है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू आई एम सेइंग एज पार्ट ऑफ दिस $1000. बजटेड कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट भी आपका लेट्स से एज पार्ट ऑफ दिस कैंपेन आई एम सेइंग $50. एक्सपेक्टेड रेवेन्यू आई एम से expected response I am saying let's say 70%, number sent let's say 500 people, and ये कैंप, अच्छा यहाँ करेंसी ये हम बाय डिफॉल्ट डॉलर है, आप ले सकते हो. ठीक है, आई एम कीपिंग डॉलर.
नाउ ये जो आपका कैंपेन है, आई एम सेइंग दैट दिस कैंपेन इज पार्ट ऑफ द अदर कैंपेन. अभी ये रिलेशनशिप, बिकॉज ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, सेल्सफोर्स ने ऑटोमेटिकली इनेबल किया है. कैसे ये सारी फील्ड क्रिएट करते हैं ना, ये वो टॉपिक ऑफ रिलेशनशिप, और हम लोग समझेंगे कि हाउ डू यू सेट अप रिलेशनशिप्स इन सेल्सफोर्स. ठीक है, आई एम सेइंग दैट दिस कैंपेन इज पार्ट ऑफ द पेरेंट कैंपेन दैट वी हैड ऑलरेडी, एडिडास. ठीक है, so I'm associating with it. Now you say, अभी आप जाओगे यहाँ पे कैंपेन पे तो आपको दिख रहा है एड्रेस टू एडवर्टाइजमेंट 1 which was there. So वो टू एडवर्टाइजमेंट 1 is part of this campaign. ठीक है, ये पेरेंट कैंपेन आप ओपन करो, यहाँ आपको दिख रहा है, ये हायरार्की में दिख रहा है कि एडिडास का टू एडवर्टाइजमेंट 1 वाला जो कैंपेन है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है. ओके, यू कैन सी अंडर द रिलेटेड. ठीक है, डिटेल्स में जाओगे आपको दिखेगा. एक और चीज है, जब भी आप अपना कैंपेन रिकॉर्ड ओपन कर रहे हो तो राइट हैंड साइड पे जब आप जाओगे, आपके पास ये ऑप्शन है व्यू कैंपेन हायरार्की. इस वाले ऑप्शन को जब आप क्लिक करोगे व्यू कैंपेन हायरार्की को, तो एज पार्ट ऑफ दिस पेरेंट कैंपेन कौन कौन से सब कैंपेन रन हो रहे हैं उनकी हायरार्की आप यहाँ से देख सकते हो. और भी एक तरीका है कि ये जो आइकन दिख रहा है ना, इस आइकन पे भी, बट अगेन बिकॉज इसे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, तो सेल्सफोर्स ने ऑटोमेटिकली ये सारी चीज आपको दे रखी है. यू कैन सी, इस पे भी क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप हायरार्की अपना कैंपेन का देख सकते हो. ठीक है, सो कोई भी ब्रांडिंग मार्केटिंग एक्टिविटी आप कर रहे हो तो वी कैप्चर दैट इन्फो इन सेल्सफोर्स. के लिए हम लोग कैंपेन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं. ठीक है, सेल्स क्लाउड का प्राइमरी ऑब्जेक्ट है. पीपल आस्क व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्ट इन द सेल्स क्लाउड, यू नीड टू आंसर कैंपेन, लीड, अपॉर्चुनिटी, अकाउंट, कॉन्टेक्ट, सेल्स सर्विसेज दोनों में यूज हैं, सब जगह यूज होते हैं. ठीक है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट. सो सेल्स क्लाउड का लाइफ साइकिल, सेल्स प्रोसेस का लाइफ साइकिल, हाउ डज इट स्टार्ट? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रांडिंग मार्केटिंग एक्टिविटी, एंड दैट्स व्हाट योर कैंपेन इज. इट्स अ प्री सेल्स मार्केटिंग और द ब्रांडिंग एक्टिविटी दैट वी डू. इस पे आप रिपोर्ट्स वगैरह कर सकते हो, एनालिटिक्स कर सकते हो. वी डू क्रिएट रिपोर्ट टॉपिक हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं. So far everyone, is it clear or any doubts or questions? Sir, one clarification. So basically, what as part of this campaign, what are we trying to do is like we are trying to campaign this Adidas shoe product in multiple communication channel using Salesforce. No, you are trying to capture the information. The actual campaigning you will do out there on the street only. Okay. Okay. It's just to keep a track of it that Yes. we have done such and such campaign. When did Yes. it happen? What was the cost and what is the Yes. Exactly. revenue or everything we have got? Exactly. It's just the tracking purpose. Yes. Okay. That's the tracking information. For actual campaign, आपको webinar organize करना है. ठीक है. You will go to the specific institute, and there you will organize the webinar, right? A specific college you will go, Yeah. and there you will do The physical campaign or doing it in other venues fine. If let's say I'm running this Adidas shoe campaign, when I open the Google page, right, in the side, if I get that campaign like Adidas shoes at 50% off, or if I just get a pop-up or something, right, that So those how kind, do yeah, that you cannot do over here. That we don't do. Few things you can do, like आपका जैसे बहुत सारी कंपनीज करती हैं, दे क्रिएटेड कम्युनिटी पोर्टल, बट कम्युनिटी पोर्टल भी सर्विसेज में ही होता है. कैंपेनिंग के लिए आई हैव हार्डली सीन समवन यूजिंग. सो योर कम्युनिटी पोर्टल इज लाइक योर कंपनी वेबसाइट. ठीक है, सपोज प्रोडक्ट सेल्स का पूरा वेबसाइट ही आपको बनाना है. आप कम्युनिटी क्लाउड का एक एप्लीकेशन से कम्युनिटी पोर्टल वहां सेटअप कर दो, उस पोर्टल पे अपने कैंपेन्स के डेटा को एक्सपोज कर दो वहां पे. ठीक है, एंड यू कैन बिल्ड सम कस्टम फंक्शनलिटी जहां से आपका शॉप, वहां से आपके एड्स रन हो रहे हैं, गूगल्स के एड के साथ इंटीग्रेशन कर दो, वैसा कर सकते हो. बट इस सारी चीजों के लिए, आई मीन दिस मार्केटिंग एक्टिविटी, ईमेल मार्केटिंग में, ईमेल कैंपेनिंग के लिए सेल्सफोर्स का अपना एक खुद का प्रोडक्ट भी है, मार्केटिंग क्लाउड. ओके, कुछ लोग मार्केटिंग क्लाउड में भी अपना करियर बनाते हैं, दैट इटसेल्फ उस पे भी जॉब होते हैं, बट दैट्स जस्ट वन स्पेसिफिक डोमेन. व्हेन यू डू एंड वर्क इन द मार्केटिंग क्लाउड, ये सारी चीजें आप नहीं करोगे वहां पे. ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ये सब, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ईमेल स्टूडियो, ईमेल कैंपेनिंग, वहां लोगो वगैरह हम लोग डिजाइन करते हैं. ईमेल का आपका फॉर्मेट क्या हो, कैसे आप, जैसे मैं जीमेल ओपन करता हूं, सो एवरी डे यू गेट so many emails, right? Like
It's not that someone is doing, ये देखो मुझे ये So website से basically, email आया. when you track this campaign, you will have this basically email studio, mobile studio, Yeah. right? So how do you Yes. send this email? And in the mobile, वो how do you try to send this SMS? How do you send the push and get the marketing, everything? in the That is marketing cloud basically. we do those. In the marketing cloud Okay. we do those kind of things. There you have option, you can mass upload your users data. I mean Uh-huh. जो भी आप whatever जो आपका परचेज Hmm. लिस्ट है, जहाँ से भी आपको लीड्स तो मिलेंगे ना जिसको भेजना है 2000. Hmm. I mean they sell Salesforce as a package itself कि एक महीने में 5 लाख ईमेल लिस्ट है you are sending 5 lakhs email, तो उसका कॉस्टिंग वैसे ही वो लोग डिसाइड करते हैं. तो कई एप्लीकेशन में primarily you will see sales service, but एक part of it will be like Pardot or marketing cloud, where we had some marketing cloud intern as well, जिनको वो वाले I mean area में आप दे देते थे. मैंने सिर्फ marketing cloud पे I think only in one project slightly I worked, but usually I mean I didn't do much on that. But yes, with marketing cloud we do those kind. ये सारा जो आप देख रहे हो ना, ये email का पूरा फॉर्मेट you can see यार, ये Uh-huh. पूरा यहाँ लोगो वगैरह आ गया, ये पूरा ब्रांड का मेरा नाम आ रहा है, right? This all these things we design in our email क्या क्या studio. कंटेंट जाना है मेल में हाँ, सब क्या 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 डिजाइन कंटेंट, करेंगे. और ये सब भी डायनेमिक हम रखते हैं. I mean in that marketing cloud you can also customize this for region specific, regional specific you wanted, and in bulk you can like specify 5000 users, एक साथ उनको 5000 लोगों को आपका जो भी ईमेल है वो चला जाए. That's one way of campaigning. मार्केटिंग क्लाउड प्रोडक्ट इसीलिए सेल्सफोर्स ने परचेज किया था, ठीक है, उसका सेपरेट लाइसेंस सेल्सफोर्स चार्ज करती है. ऑलराइट, Yeah, got it. Thank you. so here you logged your campaign, you didn't do your actual campaign, ठीक है. Now once कैंपेनिंग, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जैसे ही आपने ब्रांडिंग की, मार्केटिंग की, यू विल स्टार्ट गेटिंग इंक्वायरीज, राइट? व्हाई, वन ऑफ द रीजन व्हाई डू यू यूज सीआरएम और सेल्सफोर्स, सो दैट आपका जो डे टू डे वर्क है वो ऑटोमेट हो सके, आसान हो सके, राइट? मेरी एक बिजनेस है, आई एम स्पेंडिंग सो मच अमाउंट ऑफ मनी, मुझे कोई ट्रैक ही नहीं है इस मंथ में कितना पैसा स्पेंड किया मैंने. एक्सेल शीट पे करने जाऊंगा काफी डिफिकल्ट हो जाएगा. अगर मैं एक नाइस चार्ट आई कैन बिल्ड ऑन द कैंपेन, ग्राफिकल फॉर्मेट है, मुझे दिख जाए कि लास्ट मंथ में कितना कैंपेनिंग किया, उसका कितना आरओआई हो, वी कैन डू, राइट? सेल्सफोर्स में रिपोर्ट्स एनालिटिक्स का फीचर है व्हिच वी डू, हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है. बट पोस्ट यू डिड द कैंपेनिंग, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? यू विल स्टार्ट गेटिंग सम कॉल्स, आपको कॉल आने लगेंगे, राइट? इंक्वायरीज आने लगेगी. व्हाट आर दीज इंक्वायरीज, व्हाट आर दीज कॉल्स? These are your potential customers, right? I am not using the word customers, I am using the word potential customer who have the probability of getting converted into actual customers, जो आपके actual customers बन सकते हैं, right? Suppose you went to the college, आपने physical campaigning की, you are there, you distributed your pamphlets with the phone number आपके sales का जो है, websites का या emails अपना दे दिया, so many emails inquiry you get. As a business entity, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी आ रही है, यू मस्ट इंश्योर कि दैट हैज बीन टेकन इनटू केयर. समवन फ्रॉम योर टीम विल कांटेक्ट दैट पर्सन, और जो भी उनका डाउट है, क्वेश्चन है, वो सारा चीजें आप उसको बात करोगे एंड आगे चेंजेस करोगे, करेक्ट? सो you need to have this data in Salesforce. And every day you need to have some sales executive जो कि उनका प्राइमरी वर्किंग हो कि जो भी लीड्स रिकॉर्ड है उसको कैप्चर करो. उसके लिए Salesforce में एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है लीड. So any potential inquiries that is coming into your system, that is what we refer as leads. Leads बहुत तरीके से आ सकते हैं. फोन के थ्रू आया तो जो भी आपके जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा who is using this application as an end user, they will just capture that information onto this leads. वेब टू लीड्स, हम लोग कई बार कमिटी पोर्टल पे जाते हैं, एक फॉर्म बना देते हैं, एक नॉर्मल सा वेब टू लीड फॉर्म, एक नॉर्मल एचटीएमएल फॉर्म, कोई भी उस डेटा को फिलअप किया, मेरा कमिटी वेबसाइट पब्लिक है, वहां से गया रजिस्ट्रेशन के, उस वेबसाइट का ऐड में गूगल ऐड में चला रहा हूँ, देयर पीपल आर फिलिंग अप द इंफॉर्मेशन एंड देन ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट अ लीड जो कि सेल्सफोर्स में आ जाएगा. आपका डेटा अपने कमिटी क्लाउड से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है. और by email it has come the system. So this is your where you will capture this information. इसको मैं change कर दूँ, list wizard में. You will capture that information under your leads. What actually happens है, अगर एक दिन में 5000 leads आ गए, like हम लोग we do in my project leads management,
तो वी हैव अ कम्युनिटी पोर्टल जहाँ हमने वेब टू लीड फॉर्म भी दे रखा है. वी हैव सम पेजेस ऑफ आवर पोर्टल व्हिच आर पब्लिक, जहाँ से कि डायरेक्ट इंक्वायरी आती है, इट क्रिएट्स अ लिस्ट डायरेक्टली इनटू द सिस्टम. अभी जब भी लीड इंक्वायरी सिस्टम में आती है तो वी हैव डिफरेंट लिस्ट व्यूज. ठीक है, लाइक यूएसए रीजन्स की इंक्वायरी है फॉर एग्जांपल, यूके रीजन्स है, तो हर एक रीजन्स के स्पेसिफिक आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव. आपका जॉब एज एन सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर लीड को फोन करोगे एंड यू विल कॉल की व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट. दैट्स वेयर यू आर बिल्डिंग द एप्लीकेशन जो इंड यूजर के लिए, वो इंड यूजर का काम होगा. तो हम लोगों ने बहुत सारे लिस्ट भी बना रखे हैं, यूएसए लीड्स, यूके लीड्स या सेल्सफोर्स की इंक्वायरी के लीड्स हैं, तो वो आपका आ गया. तो वही हर एक रीजन स्पेसिफिक आपके कुछ यूजर्स होंगे जिनको कि उस एप्लीकेशन में उसी लिस्ट व्यू का एक्सेस होगा. वो क्या करते हैं, इस रिकॉर्ड पे जाएंगे, इसको ओपन करेंगे, यहाँ से देखेंगे क्या ईमेल आया, इस कंटेंट को पढ़ेंगे और उसको कॉल करेंगे डायरेक्टली. वहाँ पे आपके डिटेल्स में उसका उस बंदे का whosoever has made the inquiry, जिसने भी इंक्वायरी दी है, उसका फोन एंड अदर डिटेल्स सिस्टम. लोग उस पर कॉल करेंगे एंड देन दे विल ट्राई टू कन्वर्ट इट. ठीक है, यू कैन कैप्चर योर लीड प्रोग्रेस एज वेल. अभी ये जैसे कलेक्ट इस अभी सपोज वर्किंग कॉन्टेक्टेड या क्लोज नॉट कन्वर्टेड, जो भी आपका लीड का स्टेटस, यू कैन क्रिएट अ न्यू लीड. लेट्स क्रिएट अ न्यू. सपोज आई एम क्रिएटिंग अ न्यू लीड, मिस्टर मयूर सिंगर एंड आई एम सेइंग दैट कि ये बंदा जो है ही पार्ट ऑफ द कंपनी वैसे Deloitte. ठीक है, I got an inquiry for this into the system. Status open not contacted. इसने कांटेक्ट ही नहीं किया है. ये लीड सोर्स यू कैन से वेब फोन इंक्वायरी रेफरल. कई बार लोग परचेज करते हैं, लाइक हाउ यू गेट सो मेनी फोन कॉल्स एवरी डे, यू वांट दिस एंड दैट बिकॉज योर डेटा इज सोल्ड आउट. सो दैट्स द थिंग यू कैन स्पेसिफाई. इंडस्ट्री, ये वैल्यूज आप कस्टमाइज कर सकते हो. तो दूसरी वैल्यू चाहिए जाना अपने सेटअप में, इस ऑब्जेक्ट पे क्लिकली से वैल्यूज हटा दो. आप जो भी आपको नई वैल्यू डालनी है आप डाल सकते हो. Annual revenue, how much revenue you are generating. I mean, you feel that this lead can generate. I am saying, let's say $5,000 worth of revenue it can generate. Lead का again, this you can customize. You have to capture address and all. वो भी आप डाल सकते हो. रेटिंग है, हॉट रेटिंग, मतलब काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है चांसेस इस लीड के कन्वर्जन के, तो हम लोग वहाँ पे रेटिंग हॉट दे देंगे. कोल्ड रेटिंग मीन्स वेरी लेस चांसेस ऑफ दिस गेटिंग कन्वर्टेड, तो उसको कोल्ड दोगे. वार्म मीन्स हाँ ठीक है, I mean you are contacting, they are replying, otherwise no. So that is specified. Usually क्या करते हैं, जैसे आपका hot leads होगा, so these are the first that will be prioritized. लोग इसको करेंगे. ये जो प्रोग्रेस बार देख रहे हो बिकॉज इससे स्टैंडर्ड हो गई, तो सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी दे रखा है. यहाँ से यू कैन मार्क इट एज ए कंसीडर दिस प्रोग्रेस बार. अभी एजेंट्स फोर्स के थ्रू यू कैन आल्सो डू दिस. जैसे मैंने लेट मी शो यू, मैंने एक एजेंट बनाया. आई एम टेलिंग इट. अभी फर्स्ट लेट मी कैप्चर सम इंक्वायरी. यू कैन बिल्ड एजेंट्स दैट कैन गिव यू, वो हम लोग एजेंट फोर्स में करते हैं, ऑल द एक्टिविटी एंड ट्रैकिंग एंड एवरीथिंग. लेट्स से आई एम सेइंग दैट चैटर इज बेसिकली जहाँ से आप सेल्सफोर्स इनबिल्ट, जहाँ से आप कम्युनिकेशन कोई भी कर सकते हो. ओके, सो @ आई एम टैगिंग आशीष कुमार, प्लीज कॉल दिस पर्सन. ठीक है, मैं एक और पोस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे. मयूर wanted to enroll in training program. ठीक है, in Salesforce training program. I mean all this is basically as an activity. Here it is happening. इधर एक्टिविटीज में चेक में जाओगे, यहाँ पे मैंने एक टास्क भी किया कि कॉल ड्यू डेट टुडे ही था, और I am saying that this was assigned to it and I am marking it as completed. मयूर सिंगर को मुझे कॉल करना था. I capture this work as अभी with now agent force आप साइड भी ले सकते हो. Employee agent which will give you, जैसे suppose I am a sales executive, I started working on this specific lead. Whether it's worth even contacting or not, you wanted to get a summary, or suppose किसी और को assign था, now you started working. एक्चुअल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में जब आप काम करोगे तो बहुत सारे कन्वर्सेशन हिस्ट्री आपको दिखेगी. यहाँ चैटर पे जब जाओगे, चैटर इज स्टैंडर्ड फीचर सेल्सफोर्स के स्टैंडर्ड. इतने सारे कन्वर्सेशन को मैं एक करके ओपन करूँ, पढ़ने जाऊँ, उससे बेहतर है कि आई कैन गेट सम इनसाइट. इट विल हेल्प मी
while I'm calling this person, I will just go, can you see if I have any other? ये वाले कर लेता हूँ, ठीक है. This is another agent I created in agent questioning. So can you provide? By the way, this is not a standard feature. Okay, this is something I had built in my agent questioning. I'm showing you कि leads कैसे जो sales executive now अभी Salesforce ने जब AI भी अपने प्लेटफॉर्म पे इनेबल कर दिए, how this is helping you to increase your sales or to convert your leads and other things. Even case resolution में ये सारे help in a faster manner. Provide a summary for lead Mr. Mayur. Okay, let it see. Let agent first. It will look at the entire insight of this data और फिर वो आपको समरी प्रोवाइड कर देगा. ठीक है, तो इट विल रादर देन आप जाओ पूरे डिटेल्स देखो क्या क्या यहाँ देखो. अभी ये बताया गलत दे दिया आई थिंक आई ऑलरेडी wrong. Anyways, this is wrongly configured. I mean, it did not give me right summary. But you can build it. अभी देखो ये बता रहा है कि it seems that there is no record matching with the name Mayur Singh in the lead object. It is not able to do this. इसलिए मैंने configure नहीं किया. I was basically build a agent for accounts. But आप अपने leads पे accounts पे यहाँ पे summary के लिए you can provide it and it can do the things for you. Let me try with this agent. But yes, this is your inquiry that is coming into your system. So that's what we. So now here, I think this is the right age. यहाँ आप, if the person get it, it's a web in the stage April. It is in the working contract. It has been thought and यहाँ annual revenue. So rather than going in the entire details, you can just use this agent to set this. आप ऐसा बना सकते हो agent for agent. So this is the lead. आपका लीड रिकॉर्ड जो है यू वांटेड टू एसोसिएट योर लीड्स विद एनी कैंपेन, वो भी कर सकते हो. यहाँ जाना, इधर ऐड टू कैंपेन. सो दिस वे यू कैन डू ए कैंपेनिंग, आई मीन रिपोर्टिंग ऑफ योर लीड्स एंड द कैंपेन स्टेटस. सेंड करो, सेव करो. तो ये लीड अब इस कैंपेन के साथ आपका एसोसिएट हो गया. ठीक है, अगर आपको लेटर रिपोर्टिंग करनी है कैंपेन और लीड्स का कंबाइंड रिपोर्ट आप कर सकते हो एज पार्ट ऑफ दिस कैंपेन. कितने लीड्स इंक्वायरी आपके आए, तो यू विल गेट एन आइडिया ना कि अगर मैंने इस स्पेसिफिक कैंपेन के लिए दिस मच अमाउंट ऑफ मनी आई हैव स्पेंट, सो उसके बेसिस पे मुझे कितनी इंक्वायरीज आई, हाउ मच ROI आई एम जनरेटिंग. सो दैट विल गिव यू अ बेटर पिक्चर. In order to run a business, yes, these things are needed, right? So you can do those kind of things. That's why it's important that this information is captured here at one CRM platform. और जो आपके end users होंगे वो they will contact this list and they will try to increase. One of the primary reason why Salesforce was introduced is to increase the sales for the bigger company, and it helps you to manage this day-to-day activity. That's why it's one of the main CRMs. I am gonna upload certain notes for all of you. Go through that notes and this assignment also. Make sure you work on this. First, let me upload this assignment. सर मेरा क्वेरी था कि सर कैन वी इंपोर्ट द डेटा फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड क्रिएट द लीड इन Salesforce? इंटीग्रेशन वगैरह से आपको बनाना पड़ेगा. वी डू, आई मीन सिर्फ थर्ड पार्टी ही नहीं. सपोज जावा में एप्लीकेशन आपका चल रहा है, यू वांटेड कि जावा एप्लीकेशन में कोई और वो डेटा ऑटोमेटिकली सेल्सफोर्स में आ जाए, राइट? करेक्ट. आपका वेबसाइट पूरा जावा एप्लीकेशन से बिल्ड है. वी डू दिस काइंड ऑफ वी डू. लेट्स से सर जैसे कोई एक्सेल शीट पे अगर कोई डेटा है हमारे पास उसमें, तो उससे अगर डेटा फैच करके हमें, हाँ वो कर सकते हो. एक्सेल शीट का डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हो. वी विल कवर डेटा मैनेजमेंट, जहाँ आई विल शो यू हाउ यू कैन डू बल्क इंपोर्ट, बल्क एक्सपोर्ट. ओके, we do that bulk upload. Data loader is a feature in admin की ट्रेनिंग का पार्ट है. There will I will show you how do you
CSV फाइल से कैसे बल्क अपलोड करते हैं हम लोग डेटा, वी विल कवर इन डिटेल्स, ठीक है, एंड यू कैन ब्रिंग इट इनटू योर सेल्सफोर्स सिस्टम, एंड दैट इज आल्सो वन वे ऑफ क्रिएटिंग लीड्स. आपके पास ऑलरेडी यू परचेज सम लीड्स डेटा, यू विल ट्राई टू ब्रिंग इट बैक इनटू द सेल्सफोर्स सिस्टम. एक बार में बल्क अपलोड कर दिया, बट आई एम सेइंग दैट आप कम्युनिटी पोर्टल से भी फॉर्म बना के वहां से करते, बट इट्स कम्युनिटी क्लड भी डू, या फिर इंटीग्रेशंस वगैरह से भी, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से वहां से भी आ जाए. जैसे एक्सेल वाली बात है तो एक्सेल वाला आप यहीं पे कर सकते हो, सेल्सफोर्स में ही वी डू डेटा मैनेजमेंट. देयर इज अ फीचर डेटा लोडर आईओ वर्कबेंच, सो मेनी. इनफैक्ट ये क्रोम एक्सटेंशन है, यहाँ से भी आप यू कैन डू द बल्क इंपोर्ट. ओके, जब वो टॉपिक करेंगे तो आई विल शो यू हाउ यू डू. यू हैव टू इंसर्ट लीड ना, आप अपना एक्सेल शीट का डेटा यहाँ पे पेस्ट कर बताऊंगा. आई विल शो यू हाउ डू वी डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है. Today's activity, what I want all of you to do, make sure set up your trial instance, create this application. ये वाला जो object है इसको create करना, ये list view है वो करना, and the PDF notes which I have shared, go through that, okay, and feel free to ask any doubts. I will continue on this in the next session. We will further resume, okay. If anyone has any PDF doubts, कहाँ you शेयर can करा आपने? PDF से upload कहाँ कर दिया, share LMS पे upload कर दिया. You can download. Okay. Okay then, now if any one of you had doubts, you can ask. Otherwise, let's resume next class. Next Saturday, what time is the class? Hello. Yeah, next Saturday, what time is the class? What will you fix? Morning. 10:30 AM से ठीक रहेगा. हाँ, morning 10:30. हाँ, This is a 10:30 fixed should be timing. fine. आपका LMS पे भी टाइमिंग, या LMS पे भी टाइमिंग चेंज हो गया है. It's now 10:30. So join at 10:30. Okay then, let's meet in the next class. Thank you everyone. Bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you.